afternoon and good to have you with us on this very special broadcast as we put the spotlight on Bihar and head for a very interesting elections. We should also speak about the young Bihar, the youngsters of Bihar, and what do they want this election season. So this is a special Young India debate edition that I'm bringing to you this afternoon. And I will be having youngsters joining us live from various parts of Bihar. What are their issues? Are they as worried about unemployment? Are they as worried about lack of good education options? Do other issues such as infrastructure, corruption, healthcare really come on their list? What do they want from their next sarkar? That's the big question. Lack of jobs, poor education infrastructure, lack of teachers and professors, poor law and order, women's safety and security, poor health infrastructure are some of the topics that come to my mind, and then in our previous conversations with the youngsters we have spoken about. So let's say good afternoon to about 10 of them who are joining me from various parts, and this is going to be a very interesting conversation. If it was not the COVID era, we would all probably have been together at some location talking face to face. But that's not possible right now. We are minimizing our exposure, our travel in COVID times, and that's why we are finding newer ways of interacting with each other. So thanks so much to all of you for joining me. But before I come to you guys, let me go across to Ayushman, who has been doing ground reportage for us and has been traveling, across Bihar. Today he's in Patna, and he's managed to also speak to a few youngsters. Ayushman, what does the Yuva of Bihar want from their next sarkar? Yes, Tanvi, I am at Patna's Ganga Ghat right now, and I am being joined by a few of the youngsters maintaining social distancing, having mask on their face. We'll try to talk to them to know what actually young Bihar wants. बिहार में चुनाव हैं, जो युवा बिहार है क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है। रोजगार चाहता है। रोजगार कैसा रोजगार चाहता है? हम लोग का जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ। हम लोग इसी के लिए गांव देहात से पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ। मेन मकसद हम लोग का वही है। आज तक सरकार की जितनी भी वैकेंसी है, हाँ। फाइनल सही से नहीं हो पाती है। अच्छा। चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय हो, किसी भी वैकेंसी की। आप सर बताइए, सिर्फ रोज़गार एक मुद्दा है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, वो आपके दिमाग में रहता है जब आप जाते हैं या नेता कैंपेनिंग करते हैं तब? हाँ, जब हम वोट देने जाते हैं तो ये सब बात को ध्यान में रखते हैं। जब देखिए यहाँ न शिक्षा सही है, न स्वास्थ्य सही है, और यहाँ जितना भी रोज़गार है बच्चों के लिए रोज़गार भी नहीं। अच्छा। बच्चों के लिए रोज़गार भी नहीं, और यहाँ जो भी रोज़गार निकालती है सरकार, जितना भी वैकेंसी निकालती है 2000-2500 जो भी निकालते हैं, तो इसमें से होता है क्या कि पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। आप बिहार पुलिस देख लीजिए, बिहार दरोगा देख लीजिए, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो जाता है। इससे एक तरह की धांधली होती है। धांधली होती है। हाँ। एक तो रोज़गार निकलता नहीं है, और निकलता है तो धांधली। हाँ। इस क्वेश्चन पहले से आउट। मैंने इस बार एग्जाम में देखा बिहार दरोगा में अच्छे सब स्टूडेंट को बाहर होते हुए। अच्छा। जो कि पिछले बार 1717 दरोगा निकल था। हाँ। तो उसमें जो है बच्चा पीटी में सब निकाला है। हाँ। और इसमें पीटी में छटा रहे हैं बच्चा। अच्छा। और इतना कटम और इतना कटम। अगर ये बताइए, मूलभूत व्यवस्था की बात करें, चूंकि काफ़ी समय हो चुका है, कितनी बदली है बिहार की तस्वीर अगर मूलभूत व्यवस्थाओं की बात करें तो? मेरा समझ से कुछ नहीं बदला है सर। इसलिए नहीं, चूँकि हम 5-7 साल से बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ। इसमें एक्चुअली देख रहे हैं कि 150 का जो एग्ज़ाम लेती है, या कभी इसका 150 क्वेश्चन सही नहीं रहता है। हाँ। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का देखिए तो सबका ठीक रहता है क्वेश्चन, यानी गलत नहीं रहता है। हाँ। लेकिन बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, हाँ, हर बात जान करके हमको लगता है गलत क्वेश्चन दे देता है। अच्छा। इसके चक्कर वो खुद आंसर शीट जारी करता है बीपीएससी, फिर उसको चेंज वो करता है। ये बार बार इसका यही ड्रामा। इस बार चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा बन के उभर रहा है। क्या ये डिमांड, ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पर यंग इंडिया का, यंग बिहार का एक प्रेशर आपको लगता है वो करा रहा है, या फिर ये अनदर एक चुनावी जुमला है? आदमी सब उब चुका है, नौजवान सब उब चुका है, देखते 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 देखते, चूंकि देख रहा है सबका उम्र खत्म हो रहा है। हाँ। जॉब नहीं मिल रहा है। आपकी कितनी उम्र बची है? मेरा उम्र अभी 30 हो रहा है। हाँ।
जी हाँ। बहुत ऐसा एग्जाम में 2-4 साल में मेरा एग्जाम नहीं दे पाएंगे हम। खत्म हो जाएगा। जी बड़ा एग्जाम जैसे नहीं होता कि जैसे बीपीएससी पीसीएस वगैरह देंगे, नेट जेआरएफ ठीक है। वगैरह। हम आपसे बात करेंगे सर, परीक्षा की तैयारी कितने साल तक करते हैं, उससे पहले का जो स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना बदलाव हो पाया पिछले 15 साल में, अगर उससे पहले बात करें तो? स्कूलिंग में तो कुछ बदलाव हुआ नहीं है वैसे भी, और एग्जामिनेशन जो भी होता है सरकारी कंपटीशन, तो जब तक आज आप एलिजिबल हैं, जब तक आपका एज ख़त्म ना हो जाए हाँ। तब तक वो कम पड़ता है। हाँ। अंतिम में ऐसा होता है कि मतलब एज ख़त्म हो गया फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। चुनाव का समय है और आपसे जानना चाहेंगे, एक युवा बिहारी इस चुनाव में क्या चाहता है? एक्चुअली युवा बिहारी जो है ना, चुनाव में गवर्नमेंट से बहुत कुछ चाहता है। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी जो पॉपुलेशन के अनुसार से जो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वैसा कुछ यहाँ पे डेवलप हुआ नहीं। और सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। 10 करोड़ का पॉपुलेशन है बिहार का, उसमें से गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से 10 लाख मैक्सिमम होंगे। एग्जिस्टिंग वैकेंसी भी नहीं, एग्जिस्टिंग वैकेंसी अभी वर्तमान में 1 लाख भी नहीं है। आप सोचिए कि बाकी जो 10 करोड़ युवा है वो क्या करेंगे। मेन इशू है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसमें नीतीश कुमार सीधा हाथ खड़ा कर चुके हैं। वो अपना स्टेटमेंट में दिए हुए हैं कि बिहार चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। आपकी उम्मीद क्या है, किससे? क्या होना चाहिए सरकारों से जो बने? देखिए डेमोक्रेसी है, हाँ। यहाँ पे चेंजेस को ही डेमोक्रेसी बोला जाता है। अगर चेंजेस ना हो तो ये एक हिपोक्रेसी और राजतंत्र हो जाता है। अच्छा। इसलिए 15 साल हम लोगों ने नीतीश कुमार को दिया, वो मतलब बहुत इनफ है। हाँ। 15 साल में आप अदर स्टेट की गवर्नमेंट से कंपेयर कीजिएगा, चाहे उड़ीसा की गवर्नमेंट हो चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट हो, उन लोगों ने जो उन लोगों का जो जीडीपी ग्रोथ होता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, चाहे जो भी इंडेक्स वगैरह में जो भी हमारी गवर्नमेंट जारी करती है, अगर उस इंडेक्स में हम लालू यादव के टाइम में जहाँ थे वहाँ पे भी अभी भी हैं, तो नीतीश कुमार का ये कैसा डेवलपमेंट हो? ये डेवलपमेंट नहीं, बस पेपर वर्क होता है, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है यहाँ पे। आप पूरा बिहार घूमिए, जहाँ भी जाइए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये लोग एम्प्लॉयमेंट को बस सरकारी नौकरी समझते हैं, जबकि यहाँ पे इतना सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, चाहे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, चाहे नर्सेज, ये सारे बेरोजगार हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बस गवर्नमेंट जॉब नहीं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। उसके तहत भी बिहार की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना कोई लोन का फैसिलिटी, ना स्टूडेंट के लिए एजुकेशन का फैसिलिटी। सरकार क्रेडिट कार्ड की बात करती थी, वो कितना सफल रहा? वो किसी के पास नहीं। हम लोग फ्रेंड सर्किल में किसी से पूछे, किसी के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। जिसका नेता से लिंक है बस वो करप्शन के लिए है, कि अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी अपना कार्यकर्ता को बस जो है ना पैसा देना है उसको, तो वो इनडायरेक्टली एक चैनल हो जाता है क्रेडिट कार्ड के नाम पे। करप्शन से लिंक कर रहे हैं। इजिली क्रेडिट कार्ड के नाम पे इजिली वो अपने कार्यकर्ता को पैसा फंड करते हैं। ठीक। There you heard it, Tanvi. The young voices clearly showing the sign of desperation that they want job. Education is the priority. Healthcare is something that they highlight. But they definitely see that where Bihar was 15 years, not much has changed in past 15 years. The developmental index of Bihar is still there. And this is what they are hinting at, that something should change, keeping the young India, young Bihar in the mind. All right, Ayushman, thanks so much for bringing us those voices there from the city of Patna. It's always interesting to see what the youngsters of the country, of any state, are actually thinking in the run-up to the elections. How do they view the politics that goes on? How do they view the promises that are being made by the netas? And what is it that they would like in terms of governance? And that's what I want to talk about. It's not just to say कि education या job तक ही सीमित है उनकी expectation. They're extremely smart generation, and they have interests across varied sectors, from politics to policy to education, health. So let's ask them. Chandan, आपसे शुरू करते हैं. Chandan Kumar is a MA history student. Chandan Kumar, let's start with you. One of the people that Ayushman was speaking with also spoke about how it's very clear the current government is not interested in setting up too many industries. They say industrialization नहीं हो सकता है क्योंकि हम landlocked state है, तो यहाँ पे कोई आके factory लगाएगा नहीं. So for the youngsters of Bihar, is it very clear that either you get a government job here or you get out of the state and go elsewhere? सबसे पहले मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जिसकी भारत देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ लैंडलॉक होते हुए भी उन्हें इंडस्ट्रीज बिहार की अपेक्षा बहुत ज्यादा है. जैसे अगर आप राजस्थान को अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे फिलहाल में 8 वो भी लैंडलॉक है. 8,300
इंडस्ट्रीज है। मध्य प्रदेश में 4099 के आसपास इंडस्ट्रीज है। पंजाब में 10,710 इंडस्ट्रीज के आसपास इंडस्ट्रीज है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि भारत के बहुत सारे देखिए राज्यों में इतने जो लैंडलॉक हैं, इतने सारे इंडस्ट्री हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का ये कहना कि जो हमारा जो राज्य है वो समुद्र किनारे न होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ सकती। ये उनका तर्क बहुत ही असंगत लगता है। और इसलिए देखिए मुझे उनसे ये उम्मीद है कि आगे आने वाली चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए हो या फिर देखिए या फिर वो महागठबंधन की सरकार हो, कोई भी हो, तो मैं ये बस यही चाहता हूँ कि जो भी कोई भी है तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की पर्याप्त उपलब्धता करवाए। क्योंकि देखिए बिना इंडस्ट्री के यहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट आने वाला है और ना जॉब लगने वाले की एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से नहीं होती है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज से भी होती है, जो कि यहाँ पे बहुत कम है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। इनफैक्ट मैं जाना चाहूँगी राकेश के पास, राकेश कुमार जो है। राकेश, इस बार हम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, एवरीबडी राकेश इज टॉकिंग अबाउट promising jobs, 12 lakh, 19 lakh, various numbers that are coming up. क्या इस बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? मैम, पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो सरकारी जॉब के बारे में बात करते हैं, वो जितने भी जॉब होते हैं ना, पूरे बिहार की बात करते हैं तो मात्र 2% ही सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। 90% लोग जो होते हैं ना, वो प्राइवेट सेक्शन की तरफ ही भागते हैं। मान लेते हैं कि वो 10 लाख जॉब की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 98% जनसंख्या कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? उसको जॉब देने के उनके पास क्या क्या आती है, वो जो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं उसमें उन्होंने क्या किया है कि हम कैसे जॉब देंगे। इंडस्ट्री लगाने की तो बात करते ही नहीं है और बोलते हैं कि समुद्र किनारे बिहार में है, इसलिए वो नहीं लग सकती है। पर हमको लगता है कि इसमें समीक्षा की जाए ना, तो बिहार में भी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संभावना है। मैम, हम एक पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वो होता है थ्योरी, वेवर की थ्योरी होता है, न्यूनतम लागत सिद्धांत होता है। उसके तहत बिहार में ना प्रॉपर इंडस्ट्री लगाने की सुविधा है। उससे बात करती है कि आपको जो है ना, बगैर ये मतलब जमीन हमारे पास बहुत मात्रा में है। साउथ बिहार में जमीन भरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे बंजर भूमि है, वहाँ पे आप ये उद्योग लगा सकते हैं। हमारे रॉ मटेरियल आपको झारखंड जा सकता है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्ट जा सकता है, बगल में हमारा कोलकाता ट्रांसपोर्ट ये है, ये मतलब पट्टन, वहाँ से आप सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट को ना नीति के साथ नियति भी होनी चाहिए अच्छी, तभी यहाँ पे रोजगार की समस्या दूर हो सकती है और यहाँ इंडस्ट्री आ सकती है। मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश है जो नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल जो है ना, जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो हमारा ये कोलकाता पत्तन से करती है, तो वो देश कर सकता है, तो बिहार तो नजदीक है बंगाल से, वो क्यों नहीं कर सकता है इस चीज में? नहीं, ये तो बहुत सही बात है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट एंड व्हाई, आई मीन दे कांट इवन कंपेयर टू दोज अराउंड देम। बट आई वांट टू गो अक्रॉस टू कमलेश यादव इज ए बीटेक स्टूडेंट। कमलेश, आप कहाँ से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड देन व्हाट इज योर प्लान आफ्टर यू फिनिश योर इंजीनियरिंग? Unmute, please. कमलेश, आई थिंक आपने म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कांट हियर यू। सॉरी मैम, सॉरी। Yes. हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीटेक। So what is your plan once you finish your BTech? ये फाइनल ईयर है मेरा, एग्जाम दे दिया है। हाँ। तो मैम, मैंने तो इंटरप्रेन्योर का सोचा है, क्योंकि जॉब तो निकलती है, उसके वैकेंसी आती है, वो कैंसिल होती हैं। हाँ। क्योंकि पिछली बार मैम एक वैकेंसी आई थी स्पेशल सर्वे अमीन की, ऐसे जिसमें मैंने भरा भी, वो कैंसिल हो गया, सीट ऐसे होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जॉब नहीं दे सकते सब, तो आप एक इंटरप्रेन्योरशिप जाइए। तो जैसे कि पीएमईजीपी के थ्रू ये लोन आते हैं, ये सारे आते हैं, ये सारे मिलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर का है, उसको लागू करना है नीतीश गवर्नमेंट को, कि जो गवर्नमेंट थी चाहे जो आने वाली है उसको लागू करनी है। तो उसमें भी बहुत सारे करप्शन होते हैं और जिसकी वजह से हमें लोन नहीं पाते। ये बहुत दिक्कत है, एक बड़ी मुद्दा है। उसका जैसे चंदन ने कहा ये कि अगर देते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आ सकती, इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चाहिए कि हमें लेबर है, जो कि पूरे
बहुत लो कॉस्ट में मिल जाएंगे अपने बिहार में, एज कंपेयर करें आंध्रा की ये सबसे। उसके बाद हमारे पास रिवर है, गंगा नदी है, वैसे भी तो हमारे पास उनको चाहिए वाटर को वो करने के लिए, आउटलेट करने के लिए इंडस्ट्री को, तो सब कुछ है हमारे पास, ऐसे नहीं है कोई रिसोर्सेस नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। जैसे कि हमारे पास टाटा आई थी बहुत पहले, इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास बहुत करप्शन है, लैंड फाइनलाइज नहीं हुआ, टैक्स बहुत ज्यादा जोड़े, इसकी वजह से कंपनियां नहीं आई। यही मेन दिक्कत है जिससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मेरा मुद्दा यही होगा, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही है और जनरेट ही करना है तो इंटरप्रेन्योरशिप के पास जाइए। अगर आप जॉब के लिए कहते हैं गवर्नमेंट जॉब देंगे तो वो नहीं दे पाएंगे आपके ऑलरेडी शिक्षा मित्र है उसमें 450 हो गया, 450,000 हो गए हैं शिक्षा मित्र, वो सारी प्राइवेट सेक्टर है, सारे को है, तो और सारे जॉब जनरेट कैसे करेंगे हमको ये नहीं पता। Okay, fair enough point and an interesting point. Prince Dikshit, do you have a view on it? We have seen even the central government has repeatedly said that job creation beyond a point, jobs create करना beyond a point मुश्किल हो जाता है. हम job enablers है. Governments can be job enablers where we can provide you a setup, we can provide you with the money, with the funding and the environment, and you start your own business. Is that a better option for even the next Bihar government to explore? देखिए, हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही सुन पा रही है? हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ. हेलो प्रिंस, मुझे हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. जी, जैसा कि जो सरकार कह रही है कि हम स्टार्टअप्स के थ्रू देंगे, सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, क्या ये संभव है कि बिना सरकारी नौकरियां दिए जो पब्लिक सेक्टर्स चलाए जा रहे हैं उसके सुचारू रूप से संचालन की बात की जा सकती है? गवर्नमेंट केवल इन नौकरियों को न दे करके और अव्यवस्था कहीं ना कहीं खुद बना रही है समाज में। यदि गवर्नमेंट जॉब दे तो यह व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। और ये जो कह रहे हैं कि हम स्टार्टअप्स करेंगे और उनको खुद उनके पैरों पे खड़ा करेंगे, उनके लिए क्या योजनाएं हैं? योजनाएं जो हैं क्या कह देने मात्र से इम्प्लीमेंट करा दी जाएंगी या उन्हें वास्तविक धरातल पर उतारने की आवश्यकता है? ये मैं जो भी सरकारें आ रही हैं, खासकर अभी की जो सरकार है उनसे पूछना तो वाजिब है क्योंकि यह लगातार 15 वर्षों से शासन कर रही है। तो इन्होंने किसी जो भी ये योजना बता रहे हैं कि हमने इन योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाई है युवाओं में, वो सिरे से खारिज की जा सकती है। तो कतई सही बात नहीं है और सरकारों को चाहिए कि अब आम जनता को मूर्ख बनाना छोड़े। तो आप क्या चाहेंगे अगली सरकार क्या करे एंड इसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स पे जाऊंगी, बट एम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब्स को लेके अगली सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है? अगली सरकार से एक्सपेक्टेशन है, हमारे बिहार में इतनी सरकारी नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं? यदि सरकारी नौकरियों को दिया जाए, कहीं ना कहीं जो भी सरकारें कह रही हैं, आज जो कह रही हैं कि हम 14 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 12 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, आज तक कहाँ सोई थी ये सरकारें? इतनी नौकरियां खाली हैं आपके यहाँ। आप हमारे नेता खुद बताए जा रहे हैं हर रैली में कि मणिपुर में 1 लाख लोगों पे 1000 लोग पुलिस में हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन बिहार में क्या स्थिति है? ओनली 74% पुलिस मैन आर देयर। क्या स्थिति है? आप क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या बताना चाहते हैं समाज में? हर समय एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लीजिए, क्राइम अगेंस्ट वीमेन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो हिनियस क्राइम्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। डेटा में बता दूं अगर जानना चाहे तो, ये सब कहने की बातें हैं। आप नौकरी दीजिए, नौकरी आपके पास तैयार पड़ी हुई है, क्यों नहीं नौकरी दे रही हैं सरकारें? ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द सेम पॉइंट। वापस से हम उसी बात पे, मुद्दे पे आ गए कि क्या अभी भी काफ़ी अटेंशन या जो उम्मीद है वो सरकारी नौकरियों से है, एंड इज दैट बिकॉज देयर आरंट एनी अदर ऑप्शंस? Vishal, maybe you want to come in on this. Vishal Sharma is an SSC student. अभी भी मेन फोकस क्या यंगस्टर्स का गवर्नमेंट जॉब्स ही है, अनलेस दे आर रेडी टू एंड विलिंग टू गो आउट, कि महाराष्ट्र चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, फिर वहां नौकरी करें? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब को हम लोग का बिहारी स्टूडेंट्स का ऐसा ट्रेडिशन बन चुका है, फैमिली की भी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब को ही उन लोग प्राइम टारगेट मानते हैं और बचपन से ही अपने बच्चों को ये शिक्षा दिया जाता है घर में ही कि
बेटा या बेटी की करना तो गवर्नमेंट जॉब ही करना, अगर प्राइवेट जॉब लगे तो उसको छोड़ देना, बाकी इससे ही कुछ कर लेना या बिजनेस कर लेना। तो मेरा ये मानना है कि अगर हर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब ही सीख करेगा, हर किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो गवर्नमेंट के पास उतनी जॉब ही नहीं है ना कि उसको प्रोवाइड करे। और बाद में सीना भी ऐसा बना हुआ है कि लगभग रेशियो है कि 1 करोड़ लड़के अगर फॉर्म भरते हैं, अगर 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो रहा है किसी वैकेंसी को लेके, तो वैकेंसी 10,000 आती है, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को प्राइवेट जॉब या प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मूव ऑन करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ गलती है, उसमें भी कुछ त्रुटि है, जिसे हम लोग के गवर्नमेंट को उसमें कुछ रूल पास करवा के, कुछ एक्ट लगवा के उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। दैट इज की जैसे हाल ही में कोविड के चलते हमारे कंट्री में एक लगभग एटलीस्ट 6 मंथ का लॉकडाउन लगाया गया, नियरली लगभग हर जगह। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, ये कह के कि हमारे पास उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, आप लोग अब घर जा सकते हैं। और बहुत लोगों की सैलरी कट कर दी गई। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोटोकॉल सेट कर दे कि किसी भी अगर एम्प्लॉय को अगर आप हायर करते हैं तो कुछ एक फिक्स टर्म रहेगा, उस टर्म के अंतर्गत उसको रखना पड़ेगा, ये इसके लिए आप बाध्य हैं, तब इस फील्ड में कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है, तब इसमें कुछ अच्छाई किया जा सकता है। नहीं तो ये आपने एकदम सही कहा। क्योंकि आपने कोविड और लॉकडाउन की बात की, लेट मी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। एंड नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू कम इन, वी हैव अ फ्यू मोर यंगस्टर्स हु हैवंट स्पोकन, बट अगर किसी और को भी कोई पॉइंट करना है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं, एंड देन आई विल कम टू यू एंड आस्क यू एज वेल। बट ऋषि, कोविड और लॉकडाउन से क्या व्यू चेंज हुआ है लोगों का बिहार में, यंगस्टर्स का? हैव यू जज्ड योर गवर्नमेंट एंड वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, और हैव योर डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट चेंज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट यू सॉ ड्यूरिंग द लॉकडाउन? यस, कोविड के कारण जो है सो लगभग सभी लोगों का रवैया जो है सो चेंज हुआ है, क्योंकि सरकार की जो नीयत है वो कोविड के दौरान जो है सो देखने को मिल गया। कोविड में बिहार सरकार अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो उनका जो उद्देश्य था वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाए। कोविड के दौरान जो हमें हेल्थ सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए था, वो मुहैया तो कराया जा नहीं रहा था, जिसके कारण लोगों का नजरिया जो है सरकार के प्रति बदला है। लोगों में कुछ गुस्सा भी है सरकार के प्रति कि कोविड के कारण जो है सो लॉकडाउन जो है सो अस्थायी रूप से पहले लगाया गया 21 डेज का, फिर उसके बाद बढ़ाया गया, बढ़ाते 3 टर्म में बढ़ाया गया, जून तक ये लॉकडाउन जो है तो बढ़ाया गया, जिसके कारण लोगों का जो है रोजगार छीना, लोगों में आय की कमी हो गई। लोग जो है यहाँ से पलायन कर करके प्रवासी मजदूर जो हुए थे उनको जो है वहां पे खाने की लाले पड़ रहे थे, उनको जो है सरकार के प्रति रवैया पूरा चेंज हो गया था कि हमें सरकार, हमारी बिहार सरकार हमें मदद क्यों नहीं कर रही है। और सब सरकार को देखें, उत्तर प्रदेश सरकार को, झारखंड सरकार को, वो अपने यहाँ के जनता को जो है माइग्रेंट वर्कर को अपने पास वापस बुला रहे थे, लेकिन ये बिहार सरकार जो है हमें अपनी बात पे अटल थी कि जब हम अपने माइग्रेंट वर्कर को वापस बुलाएंगे तो यहाँ पे जो है कोरोना का संक्रमण थोड़ा ज्यादा फैल जाएगा। इसका साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि आप जब ये बात कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण ज्यादातर फैल जाएगा, इसका मतलब है कि आपके पास कोरोना से लड़ने का हथियार नहीं था, तभी तो आप बात ये ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो है किसी भी तरीका से तैयार नहीं था कोरोना संक्रमण के दौरान, और लोगों का जो है गुस्सा उनपे जाहिर बनता भी है, और हमारा यूथ का भी गुस्सा जाहिर बनता है, क्योंकि जो है और सब स्टेट को देख रहे थे कोरोना के दौरान, वो पूरी कोशिश के साथ, पूरे जोर के साथ जो है कोरोना काल में अपना सुविधा मुहैया करा रहे थे। लेकिन यहाँ जो अब हम देख रहे थे DMCH के डॉक्टर का बार बयान आ रहा था कि हमें किट उपलब्ध कराया नहीं जा रहा है, तो हम कहाँ से जो है इसका पेशेंट का इलाज करेंगे। ये बात तो हमेशा खलेगा ही कि आप जब किट उपलब्ध नहीं कराएंगे तो कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को हाथ कैसे लगाएगा। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम पब्लिक से क्या उम्मीदें रख सकते हैं। तो कोरोना काल में जो है लोगों का रवैया
बदला भी है, लोगों का गुस्सा भी है और होना भी चाहिए। इस बात से हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि क्यों ना होना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए कहाँ तक जो है सुविधा मुहैया करा सकते हैं। विगत 15 वर्ष में हमने देखा कि इनकी जो रवैया है साफ तौर से चेंज होते गया है। ये जो है किसी भी बात पे जो है अपनी पक्ष को रखना चाहते ही नहीं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो पिछले वर्ष हम देखें 2019 में बाढ़ की समस्या जब उत्पन्न हुई थी तो एनडीए के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो बोलते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है, आपदा के कारण जो है हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं और इसका निपटान हम अपने तौर तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कोरोना के दौरान भी बोला कि तो वैश्विक महामारी है, हम क्या कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि ये तो अब महामारी है, अब इसमें हम क्या करें, या जब फ्लड्स आते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से ही सालों से खराब है, किसी सरकार उसको बदल नहीं पाई, तो अब जब इतना बड़ा पैंडेमिक हो रहा है देश में तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल हो ही जाएगा। इसको क्या हम ये सरकार को या किसी और सरकार को कह सकते हैं कि वो ओवरनाइट कुछ नहीं कर पाए? संचित, व्हाट्स योर व्यू? एंड व्हाट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज दैट ऑल ऑफ यू आर इन योर 20s and for 15 years you've only seen one government, one party, one chief minister. A large part of your life you've only seen this kind of governance go on. So मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के व्यूज सुन के कि आप इस सरकार को या अगली सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। संचित, क्या हम करंट गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं था बिहार में, अब रातों रात वो क्या ही बना लेते? ऑब्वियसली हम लोग ब्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे हमें हम लोगों को एक साथ लाने के लिए। सो मिरर नाउ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने सवालों का आपके जवाब देता हूँ कि ऑब्वियसली 15 साल हम लोगों ने दिया है अपने सरकार को और इन्होंने क्या किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया। आप पटना सिटीज में देख लो, कोविड-19 जो भी आई महामारी, उसमें सही तरीके से कुछ भी मैनेज वे में कुछ नहीं किया गया। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, उनकी सैलरी हो, उन्हें वेतन नहीं दिया गया है ना। तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए, इस इलेक्शन की बात की जाए, तो बिहार की जनता इस 2020 के इलेक्शन को ऐतिहासिक इलेक्शन बना सकती है, क्योंकि पूरे विश्व में कोविड-19 की महामारी में ये पहला सबसे बड़ा इलेक्शन है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड चीज मैं बिहार के बारे में बोलना चाहूँगा कि कास्ट बेस्ड वायलेंस तो बिहार में खत्म हो गया लालू प्रसाद की सरकार के बाद, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी चालू है। आप जमीनी स्तर पर देख सकते हो, या मुखिया का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, ये हमेशा जो वोट हम लोग देते हैं वो जमीनी तौर पे कास्ट पे देते हैं, आधारित रहती है। इसे हम लोगों को बदलना होगा और ये बदलेगा कैसे? जब तक बिहार में लिटरेसी रेट को हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ नहीं करते हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं है। बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे नीचे है ऑल ओवर कंपेरिजन की जाए और अदर राज्यों से। तो ये यहाँ तक आप देख लो, फ्लड की बात की जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए, मिड डे मील जो है सही खाना नहीं मिलता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जीवित है और जिस पे वर्क किया जा सकता है। बार बार सरकार कहती है कि लैंडलॉक्ड है। अरे भाई, अगर हमारे पास समुद्र नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग ट्रांसपोर्ट तो कर सकते हैं ना थ्रू रोड या थ्रू प्लेन, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल पैरालिसिस एंड लैक ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, ये दोनों मुद्दे हैं। ये सरकार की जो नेताओं की इच्छा शक्ति है, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग बिहार की विकास करें। केवल उन्हें क्या चाहिए? तो अपनी कुर्सी चाहिए, बचाना है कैसे भी करके। इसलिए मैं चाहूँगा कि 15 साल के बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है, हम लोगों को मिलकर किसी और पार्टी की सरकार बनानी चाहिए ताकि एक बदलाव आया जाए। एक्चुअली हम लोग क्यों डरते हैं? हम लोग बदलाव से डरते हैं, इसीलिए हम लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी क्रांति स्टार्ट होती है तो एक बदलाव के साथ, अगर हम लोग बदलाव नहीं चाहेंगे तो क्रांति कहाँ से आएगी, कहाँ से विकास आएगा? हम लोगों ने 15 साल देख लिया है, कोई डेवलपमेंट नहीं आया है। यहाँ तक कि ये लोग क्या करते हैं, गठबंधन की सरकार अपने बेनिफिट के लिए कभी इससे लग गए, कभी उससे आरजेडी से मिल गए, कभी बीजेपी से मिल गए। सरकार ऐसे नहीं चलती है।
तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। फ्लड की केस है तो आप लोग बोलते हैं ये प्राकृतिक आपदा है। दुनिया में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग फ्लड पे कंट्रोल की जा सके, रिवर को हम लोग कंट्रोल की जा सके, बड़े बड़े डैम बना सके। हमारे पास ज़मीन बहुत है, लेकिन उसकी आधुनिक तरीके से ना उस पर खेती होती है, ना उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे एक मित्र बात कर रहे थे माइग्रेशन वर्कर के बारे में या बिग इंडस्ट्री के बारे में। नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे किया जा सकता है। जरूरत है तो युवाओं को पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन बिहार ऐसे रूढ़िवादी जो सोच रखते हैं कि नहीं आप पॉलिटिक्स में मत आओ, यहाँ करियर नहीं है, लोग क्या कहेंगे, है ना, आप बाहर जाओ वर्क करो। इन सब चीज़ों को तोड़ना होगा, तभी जाकर हम एक नया बिहार को विकसित कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं आपने सही बोला और सारे टॉपिक्स कवर किए। सो फ्लड्स क्लियरली इज अ बिग इशू अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब्स। अजीत वांट्स टू मेक अ पॉइंट एंड कम इन। अजीत कुमार MA इज एन MA स्टूडेंट। गो अहेड अजीत, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैम पहले तो बिहार में समस्या ही समस्या है। पहले शिक्षा का, शिक्षा में बिहार में मतलब एक टीचर पे 39 एक टीचर पे 39 स्टूडेंट्स है, मतलब इतना बुरा हाल है। जबकि यही दिल्ली का एक टीचर पे मात्र 16 स्टूडेंट, मतलब पढ़ाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। प्लस कॉलेज की कमी है, ये है, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी है। फिर कॉलेज में सिर्फ शिक्षा दिया जाता है तो सिर्फ ग्रेजुएट होने के लिए, पास करने के लिए, ये नहीं कि जॉब, आखिर में जॉब के लिए कैसे आपको पढ़ाएंगे। टीचर्स ये नहीं समझते हैं, प्रोफेसर ये नहीं समझते हैं, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। एक NSS का मैं सर्वे देख रहा था तो उसमें मात्र कॉलेज में 6% ऐसी पढ़ाई होती है जो आपको जीवन में आगे काम देती है, अन्यथा फिर नहीं देती है। सोचिए बिहार के मतलब 18 से लेके कम से कम 30 साल के युवा, ये इनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब यहाँ से कहीं बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब बिहार में नहीं रह रहे। क्यों नहीं रह रहे? इसका कारण इसका मेन दोषी कौन है? तो बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है। जब तक आप ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं लगाइएगा, कुछ इन लोग को सुविधाएं नहीं दीजिएगा, जॉब नहीं दीजिएगा, क्या करेंगे? तो जाति बेस्ड राजनीति करेंगे, अरे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारेंगे तो कैसे? आखिर हमारे देश के राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति बिहार के ही है, राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना बुरा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का यही हाल है। कोविड अभी पूरे विश्व के लिए कोविड पेंडेमिक था पहला, चलिए ठीक है, सब एक आया था 1920 के आसपास आया था, एक अभी आया। तो अरे भाई ठीक है, आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप सुधार के रखिएगा ना। तो बेसिक ही इन लोग नहीं सुधारते हैं, चाहे बिहार का बात हो या ऑल ओवर इंडिया का। अरे ठीक है, बिहार में आया, दिल्ली में भी तो आया, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ बिहार में आ गया दिल्ली में नहीं आया। तो बस मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि आप किसी तरह ऐसे बिहार के लोगों से यही इंतजार है कि आप किसी तरह से अच्छे गवर्नमेंट को लाएं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। थैंक यू। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और अजीत कुमार आपसे शुरू करते हैं। ऑफ लेट हमने देखा इंडियन पॉलिटिक्स में ये थोड़ा पर्सनालिटी ड्रिवन हो गया है। काफ़ी इलेक्शंस जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं वो बीजेपी मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है, नीतीश के नाम पे कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं वो खुद से। अब जो है पहले बोला जा रहा था कि ऑपोजिशन के पास कोई है नहीं, उनका कोई बिग फेस नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ महीनों में तो काफ़ी मेहनत करके वो एक चैलेंजर इमर्ज कर रहे हैं। For the youngsters of Bihar, how much of this election is about these faces versus your real issues? ये आप एजेंडा पे वोट करेंगे, कास्ट पे वोट करेंगे या इनके नाम पे वोट करेंगे? अजीत? नहीं मैम, हम लोग वोट करेंगे जो विकास की बात करता हो, जो जॉब की बात करता हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात करता हो, जो कृषि क्षेत्र में विकास करने की बात करता हो, हम उस पे वोट करेंगे। ये नहीं किसी का फेस देख के नहीं। बहुत सा ऐसा राजनीति दल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें मतलब टिकट किसको दिया? जो सबसे ज्यादा बाहुबली है। अरे भाई फिर मतलब आज भी आपका वही हाल है, देश 70 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए, आप फिर भी उन्हीं लोग को दे रहे हैं। अरे एजुकेटेड पर्सन को दीजिए। एक पार्टी में 70 से 80% ऐसे आदमी हैं जिनको ये टिकट दिया जाता है, जो बाहुबली नेता होते हैं, जिनके ऊपर हजारों केस चलते रहते हैं, फिर भी उन्हीं को कैसे बढ़ेगा बिहार?
तो कैसे इसको बदला जाए, क्योंकि अगर आप बिहार के अभी देखें सारी पार्टीज में कुछ का तो 70% से ऊपर है सारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, कुछ का सबका एटलीस्ट 45 to 50% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ही कैंडिडेट्स है। तो इसको अजीत बदलेंगे कैसे फिर? मैम अब जो सबसे कम होगा उन्हीं को सबसे ज्यादा देने। हाँ। मेरा तो यही ख्वाहिश है कि जो सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में यदि ऐसे होंगे हाँ। जो माने बाहुबली टाइप के नेता होंगे जिनके ऊपर केसेस चल रहे होंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे, जाके नोटा हमारे लिए बनाए गए, जाके नोटा दाब के चलाएंगे। हाँ ठीक है। अविनाश, डू यू अग्री दैट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम? अभी भी हम जो बड़े हैं, पावरफुल हैं, गुंडे हैं, वाले मसलमैन जिनके पास है, उनको टिकट्स मिल रहे हैं बिहार में? यस मैम। अविनाश कुमार, अविनाश आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली गो अक्रॉस टू भीष्म नारायण कुमार। भीष्म, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, I will try and get both of them back on this debate, but Kamlesh, आप you wanted to make a point earlier, आप कुछ कहना चाह रहे थे? म्यूट। कमलेश म्यूट हो गया शायद। अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर दिया गलती से, चेक कीजिए। कमलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, तो मैं अपना जो पटना है वो कर्व एरिया है, पूरा कर्व आया है, कंकड़बाग एरिया है जो डाउन एरिया है, उसके बाद पूरा स्लॉप उठ के गया है, वो पूरा का पूरा एक कर्व है। तो अगर पटना कैपिटल को सुधार नहीं पाते, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है। अगर हम बताएं तो जिस वक्त फ्लड आया था उस वक्त 27 डिस्ट्रिक्ट थी हाई अलर्ट पे। उस वक्त नीतीश कुमार एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। आप मोदी को लेती हैं, ये लीजिए अमित शाह जी को लीजिए, इनका किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है। ये सबसे गलत पॉइंट था एक कि ये लोग उस वक्त नहीं है, अभी इलेक्शन के वक्त सबको आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम जब तक अगर नीतीश कुमार का फेस देख लड़ रहे हैं, ये गलत बात है। 15 सालों से बीजेपी बहुत आगे बढ़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, तो उसको एक अच्छा फेस लेकर आना चाहिए था। अगर आज तक का एक सर्वे देखिए तो उसमें दिखाता है कि नीतीश ये जो मोदी का है उनका बहुत बड़ा है आगे करके। अब वोटें भी ज्यादा मिल रही हैं, सीटें भी ज्यादा मिल रही हैं, तो एक नया फेस शो करना चाहिए। वो ज्यादा अच्छा रहता, वो बेहतर रहता। हम उसे ज्यादा लाइक करते हैं, उसे ज्यादा ट्राई करते हैं, और उसे वोट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि पिछला गवर्नमेंट है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है और वो 15 सालों से कुछ नहीं कर पाई। तो हमें एक नया पर्सन ट्राई करना चाहिए और नया सोचना चाहिए। और कोविड में जहां पे हम देखते हैं दिल्ली में, वहां पे आते हैं 5 लाख किट आते हैं, यहाँ पे 5000 किट आते हैं। पहला जो केसेस आए थे वो तो डेड बॉडी से पता चला था कि हमारे यहाँ कोविड का पेशेंट भी है कोई, जो कि छपरा का पेशेंट था एक। उसके बाद ऐसे हमें पता चलता है हमारे डॉक्टर के पास कितनी है, जैसे कि ऋषि राज कह रहे थे, चंदन का पॉइंट था, ये सारे लोग इतना पॉइंट थे, ये सब के सब। तो मैम हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, हमें किसी नए लोगों को लेकर। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, अभी जैसे हम देख रहे हैं जितनी रैलीज हो रही हैं या बाहर लोग कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि बिहार में कोविड का कोई भी डर बचा है अभी, या कोई सोच भी रहा है इसके बारे में। हर जगह इतनी बड़ी बड़ी भीड़ है, सब लोग जमा हो रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि मतलब लोग थक चुके हैं या डर निकल चुका है या अब इलेक्शन मोड में आ गए हैं? अविनाश, इफ यू कैन हियर मी, डू यू हैव अ व्यू ऑन दिस? ये जो भीड़ आ रही है, मुझे लगता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद कोरोना महामारी का एक दौर बिहार में भी आएगा और आप देखेंगे कि यहाँ बेड्स नहीं मिलेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि लिमिटेड संख्या में 5 लोगों को भीड़ लेकर आप डोर टू डोर कैंपेन करिए, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो क्यों रही है? यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री आके रैली करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी की भी रैली है। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का के जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी धज्जियां उड़ रही है, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि आप जो पूरे देश का जो आंकड़ा आता है कोरोना का, मुझे लगता है कि सबसे यदि जो संदिग्ध आंकड़ा है ना, वो बिहार का ही आता है। आप पूरे दिल्ली में RT-PCR टेस्ट होती है,
उसकी जो संख्या है ज्यादा है। और बिहार में देखेंगे तो आप एंटीजन टेस्ट ज्यादा होती है, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होती है। एंटीजन टेस्ट की संदिग्धता है, उसमें मान नहीं सकते कि कंफर्म किसी को कोरोना यदि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव। बिहार में बहुत कम मात्रा में आरटीपीसीआर टेस्ट है जो कि ऑथेंटिक है। ये तो अलग पॉइंट हो गया कोरोना का। मैं एक दो पॉइंट पर और बात करना चाहूंगा यदि आपकी अनुमति हो। जी बोलिए। हाँ जी अविनाश, आपके और क्या पॉइंट्स है, बोलिए। जी मैं एक दो पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। पहला मेरा मुद्दा है हायर एजुकेशन का। हाँ। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, बिहार का एक पिछड़ा जिला है मान लीजिए। उस जिले में मेरे जो घर के पास जो सबसे नजदीकी जो कॉलेज है वहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती है। पीएचडी की तो बात छोड़िए, एमए की पढ़ाई नहीं होती है। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट जो जिस विश्वविद्यालय के अंदर आता है मुंगेर विश्वविद्यालय है, और मुंगेर विश्वविद्यालय में पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि यदि खगड़िया का कोई लड़का यदि हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहे तो उसको या तो पटना जाए या और किसी अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन ले। ये समस्या है। हायर एजुकेशन की डेफिनेटली एक समस्या है। मैं वेरी क्विकली ये ऑनलाइन जो हम ये जो शो है कॉन्वर्जेशन हम लोग कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे भी लाइव है और फेसबुक पे मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी। तो इनफैक्ट आपके दूसरी स्टेट से भी लोग कह रहे हैं कि वी होप दैट बिहार दिस टाइम वोट्स करेक्टली फॉर द रियल इश्यूज, और देखें कि बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है और उसको कंपेयर करें। दैट parties need to start talking about jobs. They need to start talking about migrant labor. In fact, एक ने तो ये भी कहा है that Bihar needs a young, highly educated minister. And I think ये बहुत important point है that जो हमारे पैनल पे भी बोल रहे थे youngsters की educated candidates चाहिए और educated leaders चाहिए जो प्रोग्रेसिव बदलाव लेके आए, ना कि जो ये बाहुबली स्टाइल के सब आ जाते हैं गुंडागर्दी करके उनको टिकट मिल जाता है। आकाश कह रहे हैं ऑनलाइन कि इफ़ देयर इज़ अ विल इट डजंट टेक सो मच टाइम टू चेंज बिहार। बट किसकी विल? पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो विल है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेट मी जस्ट गो बैक टू चंदन से हमने ये कॉन्वर्जेशन शुरू किया था। चंदन, जॉब्स हमने कवर कर ली, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, कैंडिडेचर कैसा होना चाहिए, करप्शन के बारे में बात किया। आउटसाइड ऑफ दैट, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टिल? जंगल राज का एक जो टैग लगा था बिहार में, वो अभी भी लोगों के मन में है कि नहीं? नहीं, जिसकी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और उसकी पहले जो गवर्नमेंट जो राजद की थी उसमें जो जंगल राज का जो टैग था वो फिलहाल कुछ घटा है। लेकिन फिलहाल अगर एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फिलहाल में जो 247 विधानसभा की सीटें हैं, बिहार विधानसभा सीटें, उसमें 136 लोग जो विधायक जो है उन्होंने वो उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और जिनपे और 94 जो व्यक्ति हैं उन पे हीनियस क्राइम का सीरियस क्राइम का उन पे चल रहा है। टोटल 243 में टोटल 230 व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसे विधायक हैं जिन पे देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चला। तो ये बताइए जब अगर क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में अगर आएगा तो यहाँ की देखिए गवर्नमेंट या लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगी? इसलिए देखिए हम लोग का गवर्नमेंट से ये अपेक्षा है कि देखिए आप लोग ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पे लाने की मत लाया करिए। और मेरा यहाँ के मतदाताओं से भी देखिए आग्रह है कि अगर आप इलेक्शन देने जाए तो आप किसी जातिवाद या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी खास व्यक्ति विशेष को देखकर वोट न देने जाए। इसके पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आपके विधानसभा के क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति खड़ा है, इसके लिए उसमें एरिया रिपोर्ट आती है। आप एरिया रिपोर्ट पे जाइए, वहां पे आप टोटल व्यक्ति का देख सकते हैं कि उन्होंने कितने क्राइम किए हैं, क्या क्राइम नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप अच्छे व्यक्ति को अगर आप लोग नहीं चुन पाइएगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा? इसलिए मैं यहाँ की जनता से भी अपील है कि एक बार जाने से पहले एक बार एरिया की रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। और इसकी इस बार जो फिलहाल में इसकी मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ। इसकी इस बार देखिए जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव होने वाली है उसमें 328 व्यक्ति हैं, इनकी टोटल 21% ऐसे उम्मीदवार जिन पे
क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और देखिए जो 244 व्यक्ति हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो वही देखिए अकॉर्डिंग टू 60% ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट फेजेस में जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और वहां मैंने एडीआर की रिपोर्ट ही मैंने देखी, तो उसमें शो कर रहा था कि फर्स्ट में 71 सीट है, उसमें 61 ऐसी सीटें हैं जिसमें से जिन सीटों पे से 2 से अधिक उम्मीदवार जो हैं जो जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ की जनता के पास वो कैसा मौका भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं किसे चुनूं। अब मान लीजिए अगर एक ही सीट पर अगर अधिकतर व्यक्ति सब चुने, मान लीजिए जो जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो वही रहेंगे, फिर जनता चुनेगी किसे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को हमारे कुछ और डिबेट्स में भी बुलाना चाहिए। हमने इनफैक्ट क्रिमिनल नेतास के बारे में 2 दिन पहले यहाँ मेरा नाव पे एक डिबेट करी थी और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की आई थी और सबका एक तो यही कहना था कि दूसरी पार्टी के ज़्यादा हैं, उनके सारे सच्ची के क्रिमिनल हैं, हमारे तो सब सीधे हैं, उनको झूठे केसेस में फंसा दिया गया। बट एवरी पॉलिटिकल पार्टी वाज ट्राइंग टू से दीज आर ऑल फॉल्स केसेस दैट हैव बीन फाइल्ड एंड वी आर ट्राइंग टू क्लीन पॉलिटिक्स। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट पीपल एंड यंगस्टर्स आर नॉट बाइंग दैट and they actually have a problem with the kind of candidates that are being pitched. I'm out of time. Thank you so much to all of you guys for joining me on this conversation and sharing your views. Always great to know what it is that people of this country and especially young India is thinking during election time, the real issues for them. I really hope that the political parties, RJD led by Tejaswi, JDU led by Nitish, Congress, BJP and the left, even the likes of Kanhaiya Kumar, I really hope they listen to what the youngsters have to say. Because there is a clear disconnect about what the parties are pitching and what is being said here. Yes, healthcare is an issue. Yes, floods, corruption and most importantly, unemployment is an issue. Thank you so much for joining us on this conversation.